Hello everyone, episode 2 of recording interview experiences of the students that were. So today we have Shubham Sharma and Raj Meena with us. We will be going through their interview experiences and all of the things that they experienced during their placement journey. I sincerely welcome you both. Shubham, can you please introduce yourself? Yeah, so my name is Shubham Sharma. I'm a fourth year computer science and engineering student at NIT Srinagar. I am currently based in CDAC, which is Center for Development of Advanced Computing in the Chennai office. CDAC has other offices as well. So they are in Bangalore, they are in Noida, Indore, and Pune. These are the most prominent ones and the major ones. So what CDAC does, it is a semi-government in the like it's a research lab. So they take government projects which are R&D focused. So they're supposed to be for DRDO, Bell, or similar organizations. So they outsource their R&D work to CDAC, which is related to computing and networks. So in CDAC Chennai, which I will be joining in June or July, we'll be working on cyber security and quantum computing domains. So these are the two domains that CDAC Chennai has projects on currently. So we'll be working on these ones. Yeah, thank you so much, Shubham. Bahadur, can you please introduce yourself? Hi, my name is Raj. I am currently in NIT Srinagar fourth year student. I am placed at Infosys as a specialist programmer L1. My joining maybe in August or September as a full-time employee. Thank you. तो मेरे को जो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आता है वही जानना है कि आपकी प्लेसमेंट जर्नी कैसे रही फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। वो कब से शुरू हुई, किस ईयर में शुरू हुई, क्या वो फोर्थ ईयर में शुरू हुई या फिर सेकेंड ईयर में हुई या जब भी हुई। और दूसरी चीज़ जो मेरे को पूछनी है वो ये है कि प्लेसमेंट जर्नी कैसे शुरू हुई, किस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया, क्या क्या रिजेक्शंस आपको फेस करने को मिले और उनके पीछे रीज़न क्या था। तो ये सब आप डिटेल में बताएं। सो वुड लाइक टू स्टार्ट विद शुभम। आप अपना बताएं कि आपको क्या चीज़ें फेस करने को पड़ी, क्या क्या आप कहाँ प्लेस हुए, कैसे हुआ, क्या रोल था, सब कुछ। राइट। तो जर्नी अगर हम बात करें तो इनिशियली जो फर्स्ट और सेकंड ईयर्स थे, आई हैड फोकस मोर ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिकॉज सिंस वी आर पार्टली अ कोविड बैच, सो वी हैड सम लिमिटेशंस जो हमें घर पे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में रहना पड़ा। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड गोइंग आउटसाइड एंड मीटिंग न्यू पीपल. That was my first 2 years. But then I was in a different company of my seniors. So it switched from the extracurricular group to the tech centered group because if you're in CSIT, you focus more on interacting with those seniors. मैं उनके साथ जब बात की तो they guided me towards two major domains, which was web development and systems engineering. Web development in the sense that it is easier to get on campus offers if you're working on something that is very relevant to the industry, and not just industry as in the use case of the industry, but the number of roles which it offers in any domain. So web development is that domain, at least it was until 3 or 4 years back. So this is where I started web development and system software. This was in by second year's end, and by third year it was starting. तो बेसिक प्रोजेक्ट्स हमने किए, मतलब मैंने मुझे जो बताया गया कि पहले तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीखनी है, एचटीएमएल सीएसएस, वो की एचटीएमएल सीएसएस इज ऐसी चीज़ है जो तुम स्किप कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट वेरी रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. अब हम टेलविंड यूज करके भी सीएसएस करते हैं. तो जावास्क्रिप्ट पहले सीखनी थी, उसके बाद फ्रंट एंड रिएक्ट फ्रेमवर्क्स, लीड फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट के बारे में फिर बंडल्स, वेब पैक्स एंड ऑल दोस निटी-ग्रिटी डिटेल्स, एंड देन मूव ऑन टू द बैक एंड पार्ट. बिकॉज सिर्फ फ्रंट एंड से इट वुड बी a slightly difficult, and maybe the opportunities are limited on campus भी, कि अगर तुम्हें सिर्फ फ्रंट एंड आता है, so it is not very sufficient because बाकी सबको बैक एंड भी आता है. So you just complete front end का part, then move on to back end, express, node, etc. अगर next stage पे जाना है जा सकते हो, टाइम नहीं है तो मत जाओ. मैं नहीं गया क्योंकि I was not into web development बहुत ज़्यादा. We'll come back to this later. और इसके बाद आई हैड मोर इंटरेस्ट इन क्लाउड. तो जो वेबसाइट्स मैंने बनाई, या इनफैक्ट राज के साथ भी मैंने काम किया, हमने साथ में किया, दैट ही हैड अ वेबसाइट, ही हैड अ फुल स्टैक वेबसाइट, और उसको होस्ट करने में आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व क्योंकि मुझे होस्टिंग में इंटरेस्ट था. तो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, एनजिनएक्स, ऑटोमेशन, एंड दिस वाज एक्चुअली माय डोमेन्स. तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगा वेब डेवलपमेंट में. तो फ्रंट एंड बैक एंड होस्टिंग, दीज वर द पार्ट्स. तो मेरे प्रोजेक्ट्स मोस्टली इन्हीं पे है. Then it was system software. So web development primarily because it would be easier to get on-campus offers, and system software because I was more interested in that domain.
मेरे को डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर्स इन सब पे इंटरेस्ट था, तो मैंने इन पे काम किया, मैंने शेल्स पे काम किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्लस ऑब्वियसली VPN सॉफ्टवेयर्स व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। VPN सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी। तो ये था मेजर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये डेवलपमेंट पार्ट था वेब और सिस्टम्स का। एंड थर्ड वाज कि लीड कोड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लीड कोड नॉट इन इटसेल्फ इज अ बैज ऑफ ऑनर, बट इट इज डेफिनेटली अ मेट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी इंसान की बहुत अच्छी है। तो आई हैड अ डिसेंट लीड कोड प्रोफाइल थर्ड ईयर में, क्योंकि मैंने तभी शुरू किया था सेकंड ईयर एंड में। आई हैड डिसेंट ट्रिपल डिजिट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसके बाद मैंने ज़्यादा किया भी नहीं थर्ड ईयर के बाद, फोर्थ ईयर में एंट्री पे। तो आई हैड अ बैलेंस प्रोफाइल कि थोड़ा वेब भी आता है, फुल स्टैक और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, लीड कोड भी डिसेंट है। And this balanced profile was targeted towards two main companies जो on campus आती हैं based on previous year data, जो मेरे को सीनियर से पता चला था and LinkedIn post डिपार्टमेंट की देख के। फर्स्ट वन was Oracle, because Oracle would focus more on कि बच्चे ने कितना काम किया है एंड वो उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, प्लस बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हिच वाज गुड विद मी। Second was Infineon, because Infineon was one of the only two companies जो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस थोड़ा सर्किटल स्किल सेट को प्रायोरिटी देते थे अपने प्रोसेसेस में। So these two were the only ones I was preparing for. And if we move on to what happened in the placement season was rejections obviously बहुत आए, क्योंकि what happened was कि Oracle हमारे सीजन में नहीं आई थी। तो was while I was in the placement season ये पूरा साल, तो Oracle effectively refused to come because they had some internal hiring issues. Infineon का हुआ कि this year they focused more on AI side of things, तो ऐसे बच्चे जिनकी प्रोफाइल्स में थोड़ा AI ML और डेवलपमेंट का काम था they were given priority, तो उसमें भी फिर मेरा नहीं हुआ। बट ठीक है, I mean rejections are part and parcel of the game। तो मतलब अपने बेसिक डेवलपमेंट स्किल सेट को रिफाइन करते रहो, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बार बार देखते रहो, उन्हीं में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने फिर उतना फोकस किया नहीं, तो आई वाज स्लाइटली आउट ऑफ टच विद इट, जो फोर्थ ईयर का पार्ट है उसमें। बट आई हैड सम बेसिक डिसेंट स्किल्स स्टिल। तो स्ट्राइवर की जो 75 हार्ड चैलेंज है, स्ट्राइवर की SD शीट है विच वाज गुड फॉर रिवीजन, तो वो करना, 75 ब्लाइंड 75 वाले बीट करना, ये दो चीज़ें मैं रेगुलरली करता रहता था। तो इट वुड स्टे शार्प, और मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं था प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो फिर ब्राउजर स्टैक वाज द फर्स्ट मेजर थिंग फॉर मी। उसमें डेवलपमेंट वाज प्रायोरिटाइज, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछते थे, एंड आई एक्चुअली वेंट अप टू द फाइनल राउंड। लेकिन फिर दे हैड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, मेरे रेज्यूमे में वो चीज़ें उनको नहीं दिखी जो उनको चाहिए थी, तो लास्ट राउंड के बाद आई वाज आउट। उसमें 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एंड देन दिस वेंट ऑन कि रिजेक्ट होते गए। बट L&T मतलब एट वन पॉइंट इट वाज कि अब मेरे को और रिजेक्शन देखने और कंपनीज आएंगी या नहीं आएंगी टेक फोकस। आई वाज डाउटफुल, तो मैंने L&T में किया, बिकॉज मेरे सीनियर से भी था कि L&T में जाते हो तो यू गेट सम प्रोजेक्ट्स और वो अपने टेक्नोलॉजी डिवीजन में डालेंगे तुम्हें। तो आई थॉट कि L&T ले लेते हैं, तो वो मिली। और बट फिर वही एक और ऑफर में अप्लाई कर सकते, तो आई केप्ट अप्लाइंग, प्रोजेक्ट के साथ चलता रहा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इस पॉइंट पे बंद हो गई थी विच वाज 8th सेमेस्टर। फिर CDAC आ गई एंड दे हैड सम गुड रोल्स। सो क्वांटम कंप्यूटिंग इज जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, इट इज क्लोज टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज करके आई अप्लाइड इन दिस एंड इट वेंट वेल एंड आई वाज सिलेक्टेड इन CDAC। Can you also tell the roles that you were selected for in L&T and CDAC? हाँ, तो L&T is they present it as a GET, but joining a time पे I would be getting an SD role. In CDAC the role is a project engineer. Can So you also there share the it would pay? Yeah, please continue. हाँ जी सर। हाँ, तो in L&T it would have been the development side of the work, so internal softwares manage करना, उनको बनाना। CDAC में it would be more research focused work. तो जो आपको ये रोल्स मिले, ये क्या फुल टाइम थे या इंटर्न थे, और इनकी पे क्या थी, रिक्वायरमेंट्स क्या थी, कितनी CGPA चाहिए थी? राइट, CGPA आई थिंक L&T में CGPA इज लाइक, मेरा CGPA 7.8 था, तो आई वाज एलिजिबल फॉर L&T वाला पार्ट। और उसमें आई थिंक 6 या 6.5 CTC था, 6 LPA, और वो फुल टाइम रोल था। तो आई वुड हैव टू जॉइन इन जून और जुलाई, जब भी उनकी ज्वाइनिंग डेट होती है डिपेंडिंग ऑन द ऑफर लेटर।
PDAC में भी CGPA criteria was 6.5 and there was an additional shortlisting based on skill set. तो LND में तो it was all on की resume दिया आपने अपने अपनी personal details submit की and then there would be a test and then an interview. PDAC में there was a step of shortlisting. तो resume देना था, अपना skill set लिखना था और plus CGPA. तो उसके बेसिस पे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करने थे बच्चे और उनका फिर डायरेक्टली इंटरव्यू होगा. सो दे वोंट बी अ टेस्ट क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग रिज्यूम बेस्ड और स्किल सेट बेस्ड थी. और इस ये भी फुल टाइम रोल है एंड द CTC वुड बी क्लोज बिटवीन द रेंज ऑफ 7 to 8. तो वो ऑफर लेटर में शेयर करेंगे विच वुड बी इन मई. तो मई के अराउंड आई कैन शेयर द एक्यूरेट CTC. बहादुर, आप अपनी जर्नी बता पाएँ कि आपने कब शुरू किया, क्या चीज़ आपने जब शुरू किया तो उसके बाद फोकस करी, फिर कैसे प्लेसमेंट सीज़न आपका रहा, कौन सी कंपनीज में आप बैठे, क्या रिजेक्शंस थे, क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें बुरी हुई, वो सब. तो मैंने स्टार्ट किया था मतलब सेकंड ईयर में. मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरा प्लान नहीं था कि मैं प्लेसमेंट लूँगा. मेरा प्लान था स्टार्टअप करने का. तो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टअप शुरू किया था ईजैक्स. तो फिर उसके लिए मुझे वेबसाइट भी चाहिए थी. तो इसके लिए फिर मैंने खुद से ही मैंने सोचा कि मैं CS से भी हूँ तो खुद ही क्यों ना बिल्ड करूँ. तो मैंने खुद वेब डिज़ाइनिंग एंड ये सब सीखा. और उसके बाद में फिर समझ आया कि फिर सिर्फ फ्रंट एंड से काम नहीं चलेगा, बैक एंड भी चाहिएगा. और फिर लार्ज स्केल पे काफ़ी चीज़ें लगेंगी जो माइक्रो सर्विसेज एक्सेट्रा. तो मैंने धीरे-धीरे वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया स्टार्टिंग में फ्रंट एंड. और उसके साथ ही मैं अपने प्रोजेक्ट पे ही काम करता था ईजैक्स पे. इसके अलावा मैंने कोई मतलब वीडियोज़ में फॉलो करता था यूट्यूब से सीखने के लिए. और एक यूडेमी से पेड कोर्स था, उससे मैंने वहाँ से सीखा था. तो उसके साथ-साथ मैं जितना भी सीखता था तो उसी को साथ में इम्प्लीमेंट भी करता था वेबसाइट बनाने में जो मुझे मेरे स्टार्टअप के लिए चाहिए थी. तो मैंने उसके काफ़ी वर्जन्स बनाए थे क्योंकि स्टार्टिंग में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ फिर रिएक्ट भी सीखा. उसके बाद बैकएंड भी. तो फिर उसके बाद में ऐसे मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट निकल गया और उसमें मैंने मेन स्टैक सीख लिया ऑलमोस्ट कंप्लीट. लेकिन मुझे माइक्रो सर्विसेज के बारे में नहीं पता था तब तक कि बाद में दिक्कतें आएँगी अगर तुम स्केल करोगे. तो फिर उसके बाद मैंने उन पे फ़ोकस किया और उनको सीखा. उसके बाद में फिर थर्ड ईयर आ गया था और मतलब स्टार्टअप भी ठीक चल रहा था लेकिन फिर दिक्कत आ रही थी कि उसको एक्सपेंड करने में पैसा चाहिए जो मैं इतना है नहीं कि मैं खुद से इन्वेस्ट करूँ. तो मुझे ये लगा कि पैसा भी ज़रूरी है. तो फिर मैंने सोचा कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. तो इस वजह से मेरा स्टार्टअप की वजह से एक तो मेरा एकेडमिक्स काफ़ी वीक रहा है स्टार्टिंग में. उसके बाद मैंने प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट किया. तो फिर प्लेसमेंट के बाद पता किया तो कि DSA इम्पोर्टेंट है, DSA आना चाहिए. तो फिर मैंने थर्ड ईयर में DSA स्टार्ट किया था क्योंकि वेब डेवलपमेंट मैं काफ़ी अच्छे से कर चुका था तब तक क्योंकि मैं काफ़ी टाइम और एक यूनिक प्रोजेक्ट भी था मेरा सबसे अलग. तो इस वजह से वेब डेवलपमेंट अच्छा खासा आता था. तो मुझे मतलब सिर्फ DSA प्रिपेयर करना था. तो फिर मैंने थर्ड ईयर से अपनी DSA की जर्नी स्टार्ट की थी. तो DSA के लिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने लब्बर को फॉलो किया था, उसके वीडियोज़ देखता था. लेकिन फिर उसके बाद में वीडियोज़ देखने के बाद तुम दोबारा सॉल्व करते हो तो तुमसे नहीं होते क्वेश्चन. इसके लिए मैंने खुद से प्रैक्टिस करने के लिए उसके बाद स्ट्राइवर की सीट फॉलो की और उससे मतलब दिन में 2-3 क्वेश्चन मिनिमम ट्राई करता था और जितने ज़्यादा हो सके वो. और थर्ड ईयर जब हमारा खत्म होने वाला था, फोर्थ ईयर स्टार्ट, तो उसके बीच में जो गैप था उस टाइम पे हम वहीं कॉलेज में रुके हुए थे. तो उस टाइम पे हमारा पूरा फोकस पूरे दिन सिर्फ DSA पे होता था. तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा DSA किया था. उससे मतलब काफ़ी हेल्प हुई थी. ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे. और उसके बाद में ये वेब डेवलपमेंट उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था. लेकिन मैं मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिवीजन करता रहता था जो चीज़ें पहले बिल्ड की है और प्रोजेक्ट्स को अच्छे से थ्रू आउट ताकि इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊँ. फिर उसके बाद में जब 7th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो कंपनीज आने लगी थी. तो मेरा मतलब मैंने बताया कि मेरा एकेडमिक काफ़ी वीक रहा था. मेरी CGPA 6 जस्ट अबव थी 6. तो मैंने उसके लिए काफ़ी कंपनीज आती थी जिनका मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 7 होता है. कुछ-कुछ का होता है जो 8+ भी होता है. लेकिन मेरे पास फिर लिमिटेड ऑप्शन ही बनते थे जो मुझे बैठने के लिए अलाउ करती थी. तो मैं मतलब सबको सजेस्ट करूँगा कि अपनी CGPA एटलीस्ट 8+ तो होनी चाहिए. और अगर कहीं तुम और भी कुछ कर रहे हो एक्स्ट्रा करिकुलम तो 7.5+ तो ज़रूरी है.
क्योंकि अगर जब तुम प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो तुम्हें चाहे कितना भी कुछ आता हो, लेकिन वो मतलब कोई मायने नहीं रखेगा अगर तुम्हारी सीजीपीए नहीं है तो यही सब फिर मतलब काफ़ी कंपनीज आई थी स्टार्टिंग में। जो हमारी सबसे फर्स्ट कंपनी थी वो यही थी, एमएमटी और इनक्रैप। तो इनक्रैप का शायद 7+ थी जिसमें मैं बैठ ही नहीं पाया था। तो मतलब सबसे फर्स्ट कंपनी थी, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था उस चीज़ का कि मुझे आता है फिर भी मतलब मैं बैठ नहीं सका। उसके बाद में फिर एमएमटी का था तो उसमें 8+ थी। ऐसे काफ़ी कंपनीज थी। फिर उसके बाद आई थी जो 6+ अलाउ कर रही थी, वो थी हिताची। उसमें मैंने ओए क्लियर हुआ। इंटरव्यू राउंड में पता नहीं मतलब सारे क्वेश्चंस आंसर किए थे, लेकिन पता नहीं किस बेसिस पे वो जज करते वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसमें मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। उसके अलावा फिर टीएफटीपीएल कंपनी थी एक, उसमें भी वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में ईएनटीएनटी थी जिसमें फर्स्ट राउंड इंटरव्यू क्लियर हुआ था, लेकिन सेकंड राउंड में रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनियां मैं मतलब इतनी याद भी नहीं है मुझे। लेकिन फिर मेरे आया दिसंबर, तो मतलब घर जाने का टाइम आ गया था। लास्ट कंपनी यही थी इन्फोसिस, जो 6 CGPA पे एलिजिबल कर रही थी। और अगर कहीं ये नहीं हुआ तो मतलब काफ़ी स्ट्रेस था उस टाइम पे कि होगा क्या होगा कैसे, क्योंकि एक तो लिमिटेड ऑप्शन थे मेरे पास में। लेकिन एट द एंड दिसंबर में जब ये थी, इसका प्रोसेस था काफ़ी सही था इसका प्रोसेस, क्योंकि पहले ओए था, उसके बाद में रिटर्न था सिस्टम डिज़ाइन का, और उसके बाद में इंटरव्यू था। तो इसमें मतलब मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया था एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। तो ये मेरी प्लेसमेंट जर्नी रही कंप्लीट। जो आप इन्फोसिस आपने बताया उसके लिए क्या कोई बॉन्ड वगैरह था या फिर पे क्या नहीं, थी आपकी? मतलब इन्फोसिस में जो मेरा रोल है वो तो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 है, लेकिन बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और पे मेरा जो सीटीसी है 11 लाख है, जो 10 लाख और 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस। आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लेसमेंट जर्नी वगैरह कैसी रही। आपने बोला कि आपने प्लेसमेंट की शुरुआत जो डीएसए की शुरू की लगभग थर्ड ईयर में। हाँ। उसके बाद आपकी जो प्लेसमेंट जब सीजन शुरू हुआ सेवन सेमेस्टर में, तो उससे लेके और एकदम लास्ट में आपकी प्लेसमेंट हुई अराउंड दिसंबर में। तो जो 4-5 महीने थे और प्राइमली 4-5 महीने से पहले का जो बेस भी था, तो आपको मतलब मैंने खुद भी देखा तो आप बहुत स्ट्रेस रहते थे और इतनी सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं कि मतलब आप कैसे उस स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो। फिर कम रिजेक्शंस आते हैं, एक एक दो दो इंटरव्यू के बीच में इतना गैप आ जाता है, फिर उस वजह से चीज़ें हो पाती हैं जो आपको आता है आप उसको बता नहीं पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह डिफरेंट। तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करी, अब मैनेज हो पाई कि नहीं, क्या सॉल्यूशंस निकले आपके लिए, क्या चीज़ आपके लिए काम करी उस वक्त? अ, जब मतलब ये गैप रहता था तो काफ़ी स्ट्रेस रहता था, और जब रिजेक्ट होके आते थे तो मतलब सर दर्द होता था, रात भर नींद भी नहीं आती थी। ये सब काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन मतलब यही है कि आस-पास तुम्हारे दोस्त कैसे, उन पे भी डिपेंड करता है, वो सपोर्ट करते हैं। तो मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे सारे सपोर्टिव थे, तो वो मुझे समझाते थे कि भाई ऑप्शन लिमिटेड है, लेकिन मतलब अगर तू अच्छे से प्रिपेयर करेगा तो ज़रूर हो जाएगा। और यही था कि मतलब तुम्हें रिजेक्ट हुए तो उसके बाद में आके सिर्फ बैठना ही नहीं है, मतलब फिर से खुद को मोटिवेट करना होता है कि इसमें नहीं हुआ तो शायद कोई अच्छा ही ऑप्शन होगा आगे। और भी मतलब अभी थक हार के बैठ जाएंगे, फिर आगे कंपनी भी आएगी तो फिर वहाँ तुम अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। और मतलब ये कम्युनिकेशन में भी काफ़ी दिक्कतें रही थी, तो इसके लिए मैं मतलब यूट्यूब लेक्चर्स देखता था कि कैसे इम्प्रूव करें। और फिर मतलब मैं दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करता था। और फिर रात को जब सोने से पहले मैं खुद ही शीशे के सामने प्रैक्टिस करता था। ये सारी चीज़ें हेल्प की थी। और जब खास करके गैप आता है तो बहुत बुरा लगता है, और कंपनीज भी आ रही होती है, लेकिन जब तुम्हारे पास सीजीपीए कम हो मेरी तरह तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनीज आती है लेकिन तुम बैठ ही नहीं पाते उस समय। तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, ये कह सकते हो कि सिर्फ 20-30%। तो यही है कि मतलब खुद को मतलब अगर रिजेक्ट हो रहे हो तो समझाते रहो कि सिर्फ एक कंपनी में अगर नहीं हुए तो ये मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं होगे। खुद मेहनत करते रहो, एट द एंड तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो यही सब। शुभम, सेम क्वेश्चन फॉर यू लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ। आपकी प्लेसमेंट भी थोड़ी लेट हुई, हालांकि आपको फिर एलएनटी में चांस मिल गया, सी डेक में बाद में मिला, लेकिन आपके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई थी। जैसे आप सीआरसी रहे तो आपको वो सब चीज़ें भी मैनेज करनी थी कि
कौन सी कंपनी आ रही है आप अपनी ब्रांच के लिए, बाकी के लिए। सर आप टीएनबी में काम कर रहे थे, उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, तो उसके साथ आप अपनी प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे थे, तो उस सब चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे थे। दूसरी चीज़, जब आपको रिजेक्शंस मिले, जैसे कि मैंने खुद देखे आपके ब्राउज़र स्ट्राइक के लिए जो रिजेक्शन आया, और वो सब बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शंस भी थे जिसमें लग रहा था कि हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया, और क्या चीज़ें थी जो आपको लगता है कि अगर आप करते तो वुड हैव बीन बेटर फॉर यू। Well, LNT से पहले तक, like I said कि LNT, by the time LNT happened there were around I think double digit में rejections हो चुके थे, and it was not a very good time कि मतलब legacy CRC वाला काम भी था, and 7 sem में it is the peak of CSE और IT की placements, tech placements as in, तो अगर वो विंडो मिस होती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि बाद में तुम ट्रस्ट करो कि बाद में कोई कंपनी आएगी भी रिलायबली। तो वन रीजन वाज दैट कि LNT में भी मैंने अप्लाई किया, व्हिच वाज नॉट समथिंग आई वुड फॉर माई सेल्फ, बट दो रिजेक्शंस थे इनिशियली, मोस्टली ओए में हो रहे थे, तो आई वाज एटलीस्ट कॉन्फिडेंट इतना कि इंटरव्यूज में जैसे ब्राउज़र स्टैक वाज उसमें कोई ओए नहीं हुआ और कोई ऑनलाइन असेसमेंट नहीं थी, कोई MCQ बेस्ड सिस्टम नहीं था, तो देयर वाज नो स्कोप फॉर प्रॉक्टरिंग ग्लिच कि कहीं से कुछ फ्लैग हुआ, कहीं से कुछ फ्लैग हुआ और मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ। तो देयर वाज नो स्कोप फॉर इट, देयर वाज ओनली अ सिस्टम डिजाइन सॉर्ट ऑफ राउंड कि तुम बैठोगे, देयर वुड बी अ इंटरव्यूअर विद यू और दे वुड गिव यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और फिर वो सिस्टम बनाना है, एंड आई मेड इट थ्रू। कि उसके बाद फिर देयर वाज आई थिंक वन मोर टेक्निकल सॉर्ट ऑफ राउंड और उसमें भी हो गया, तो एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि आई वुड मेक इट थ्रू एन इंटरव्यू। And similar thing had happened with the Oracle as well. जब वो interns के लिए आए थे last year, that would make I can make it through the interview. So I have skills उतना तो that was some sort of relief. But online assessments में बाहर हो जाना is a luck factor also. So I just had to like reiterate to myself कि तुम्हारे पास skill set है, तुम्हारा resume balance है, there is good development projects जो improve हो रहे हैं, they're not redundant, they're not obsolete projects जो पड़े हैं बन गए थे, they are actively being maintained. मेरे पास बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये चीज़ें बार बार खुद को बोलनी पड़ती थी हर मतलब रिजेक्शन के बाद, तो और मोस्टली ओए में ही होते थे, तो देयर वाज अ फैक्टर कि मैं खुद को दिलासा ही दे सकता हूँ कि लक 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 वही खराब है। एंड द सेकंड थिंग इज इट इज अ वेरी आई मीन आई वुड एडवाइज एनीवन कि तुम 7 सेम में जैसे बच्चे कई बार करते हैं कि मैं अपना अगर शेड रूम में रहना तो मैं अपना पढ़ूंगा, मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं। दिस इज द वेरी जेई स्पेसिफिक माइंडसेट कि कोई आगे मेरा देख लेगा तो ओ कुछ खराब हो जाएगा और समथिंग। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट दिस, क्योंकि मेरे जब भी रिजेक्शंस हुए हैं तो वही दोस्त काम आते थे जिनके साथ बैठ के मैंने पढ़ा है। तो इफ आई हैड आई जस्ट आई डोंट हैव टू लाइक गो देयर एंड उनको सामने कुछ रोना है या कुछ करना है, आई जस्ट हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, और फिर वो खुद पॉजिटिव क्वालिटीज गिनाते लगते थे। दे वुड डू समथिंग कि ठीक है ये नहीं तो अगला कुछ हो जाएगा, यू हैव स्किल्स, तो ऑन कैंपस नहीं ऑफ कैंपस कोई सीनियर हेल्प कर देगा रेफरल में या कोई ओपनिंग दे देगा, समथिंग 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 समथिंग। तो दीज टू थिंग्स कि अपना स्किल सेट जो है यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुम्हें कितना आता है, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नहीं आता है कोई बात नहीं, देयर पूरा 1 साल होता है सेमेस्टर्स प्लेसमेंट्स का, 2 सेमेस्टर्स होते हैं। टेक प्लेसमेंट्स ऐसा नहीं कि 1 सेम में होती ही नहीं है, तो अगर स्किल सेट कम है तो उसको डेवलप कर सकते हैं, बट anyone has to be very honest with themselves कि उनको कितना आता है। I was very honest कि मेरे को आता है, but I'm not very deep into one thing. I'm a very balanced. I have a balanced profile, तो उस टाइप की कंपनीज में ही I have to expect something. दूसरा is be around people जो खुद मेहनत करते हैं and they are very positive mindset oriented. They won't put you down for being rejected or facing rejections. They will reiterate what are your strengths, what are your weaknesses जिन पे काम कर सकते हो। राज के साथ भी जैसे हो रहा था, अगर इसको रिजेक्शन आ रहे थे तो आई वुड गो टू हिम और मैं इसको यही बोलता था कि तेरा डेवलपमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट, तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूट, लेकिन तेरा CGPA ही बस प्रॉब्लम है विच वुड फिक्स इटसेल्फ किसी कंपनी के साथ। ये मेरे पास आता था आई मीन कभी कभी, और ये मेरे को यही बोलता था कि ओए वाला इज ओनली लक फैक्टर, और उसको लेके ज्यादा दिल निराश नहीं करना कि कोई ऑल इट टेक्स इज वन गुड ओए जो क्लियर करना है और उसके बाद इंटरव्यू में खुद से संभाल लेगा। दीज टू थिंग्स आई वुड से इसकी रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है।
CRC, बीइंग अ CRC इसमें ये हेल्प करता है, और इट इज़ अ डाउन साइड एज वेल, कि कुछ आइडिया होता है, फेमिलियरिटी होती है कंपनी के प्रोसेस के साथ, तो आई वोंट फील एज फॉरेन टू अ प्रोसेस एज अ नॉर्मल स्टूडेंट वुड हु इज नॉट अ CRC। मुझे पता है HR की मेंटालिटी क्या है, आई हैव टॉक टू देम, I have spoken with them about the process कुछ हद तक first hand experience, and listening to someone speak about the process first hand is different from reading it on the group when a CRC posts about it. So that was an advantage. That is also a disadvantage in the sense कि अगर कोई कंपनी है जो तुम मैनेज कर रहे हो और उसके प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ हो रही है, जैसे लेट्स से किसी कोई OA शेड्यूल था 3 बजे के लिए और वो थोड़ा सा डिले हो जाता है और तुम खुद भी वो OA दे रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें खुद भी स्ट्रेस है कि ये क्या हो रहा है कि OA का लिंक नहीं आ रहा, बच्चों को रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों के पेंडिंग है, वो अभी तक नहीं हुए, बस OA का टाइम हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनको ऐसे ही टेक्निकलिटी बेसिस पे बाहर कर दे। सेकेंड इज कि तुम्हारा खुद का भी OA है और तुम्हें बच्चे कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा शेड्यूल था बट कुछ अभी तक अपडेट नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So you have to manage your as well, you have to manage everybody else's as well, you have to take stress about your performance, and you have to be worried about कि किसी और को परफॉर्म करने का मौका ही ना मिले, मे बी just because की कोई टेक्निकलिटी इशू है, so you have to be in touch with the HR। तो ये इज अ प्रो एंड अ कॉन ऑफ बीइंग अ CRC। एंड लाइक आई सेड, अगर रिजेक्शन आ रहे हैं, यू हैव टू वेरी क्लियर कि मेरा स्किल सेट कहाँ खराब है, उसमें मुझे काम करना है, अगर लक बेस्ड है तो उसका मेरे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है, तो आई हैव टू लेट इट गो। सेकंड इज बी अराउंड गुड पीपल, हैव फ्रेंड्स, थोड़े भी हैं तो भी चलेगा, बट हैव अ फ्यू फ्रेंड्स who uplift you, who are there by your side जब तुम रिजेक्शंस में होते हो, when you're down in the dust। द अनदर थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज कि फंडामेंटल्स का बहुत बड़ा रोल है, वेदर इट इज़ OA या फिर आपका इंटरव्यू है, तो फंडामेंटल्स का बहुत बड़ा रोल है। पहली चीज़ जो मेरे को पूछनी है कि फंडामेंटल्स जो आप CS फंडामेंटल्स आई एम टॉकिंग अबाउट जो आप पढ़ते हो क्लास में, क्या वही चीज़ हैं या फिर आपको दूसरे रिसोर्सेज फॉलो करने हैं? अगर आप दूसरे रिसोर्सेज फॉलो भी कर रहे हैं तो कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जो आपके लिए अच्छे थे, आप अगर इनको करोगे तो इजीली यू कैन स्कोर इन योर OA और आपके इंटरव्यू? और कितने परसेंट इनका रोल था कि आपके OA में कितने परसेंट फंडामेंटल्स आ रहे थे और कितने परसेंट आपके इंटरव्यूज़ में फंडामेंटल्स पूछे जा रहे थे? कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, कितना डेप्थ में पूछे जा रहे थे, तो वो सब। तो OA का विल स्टार्ट विद द क्लासरूम का। तो देर आर 2 or 3 मेन सब्जेक्ट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड टू सम एक्सटेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये 4 सब्जेक्ट्स जो एटलीस्ट CSE में ये पढ़ाए भी जाते हैं, CSE एंड IT। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं, दे वर वेरी मच सफिशिएंट, जो हमें क्लास में कंटेंट डिलीवर हुआ था। हेड बाय टू डॉक्टर एहसान डिड अ वेरी गुड जॉब एट डिलीवरिंग ऑल द कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट। उन्होंने हमें एक बुक भी रेकमेंड की थी विच इज गैवन, इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए भी उन्होंने एक रेकमेंड की थी, बट आई पर्सनली डिडंट फील द नीड टू लाइक रेफरेंस अ बुक कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, बिकॉज जनरिकली किसी भी OA में इतना कंप्यूटर नेटवर्क का कोई सवाल आता नहीं है, इट इज वेरी रेयरली आस्क्ड unless it is Cisco, because Cisco का पूरा OA it is based on computer networks and they test the student very thoroughly networks की knowledge पे। तो अगर कोई क्लाउड बेस्ड रोल्स में कर रहा है या SD में भी कर रहा है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स Cisco में इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो OS, DBMS एंड OOPS आर दी ओनली थ्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें से OS का कंटेंट हमें क्लास में अच्छा डिलीवर किया था, तो उसके नोट्स मेरे पास अभी भी हैं, एंड आई जस्ट गो बैक टू देम समटाइम, क्योंकि OS इज अ रेलेवेंट सब्जेक्ट्स OS CS फंडामेंटल्स के बाद भी, तो दे वर वेरी गुड नोट्स। सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए मुझे मेरे दोस्त ने ही रेकमेंड किया था। देयर इज एक्चुअली 2 आर्टिकल्स ऑन लीड कोड, oops fundamentals नाम है। आई रिमेंबर यूजर नेम वाज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि यूजर नेम क्या था उस यूजर का जिसने पोस्ट किया, बट दे आर वेरी पॉपुलर आर्टिकल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1 और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 2, ये लीड कोड के 2 आर्टिकल्स हैं, एंड दे आर, आई थिंक जितने भी इंटरव्यूज या OAs मैंने दिए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 90-95% क्वेश्चंस उसी 2 आर्टिकल से आए हैं, उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछा गया। एंड द थर्ड थिंग इज DBMS। DBMS के लिए लव बब्बर की एक कंसोलिडेटेड प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसके PDF नोट्स हैं, तो दे आर आई थिंक सफिशिएंट फॉर एनी एंड ऑल ऑपरेट ऑनलाइन असेसमेंट
DBMS questions. इन 3 के अलावा देयर इज़ आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग कहीं पे भी कुछ यूज़ करना पड़ा हो। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं जिनमें ओए से बाहर हुआ वाज़ मोस्टली अराउंड फ्लैग सिस्टम्स कि कहीं से कुछ आवाज़ आती थी बिकॉज़ आई वाज़ आल्सो द सीआरसी। तो मोस्टली यही हुआ है कि मैं ओए मेरा मेरा भी ओए चल रहा है और कोई बच्चा किसी कंपनी को लेके फ़ोन कर देता है, तो भले ही उसकी वाइब्रेशन फ्लैग ऊपर हो जाती है। कभी-कभी लैपटॉप पे व्हाट्सएप ऑन रह जाता था, तो लोग व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वो स्क्रीन पूरी शिफ्ट हो जाती है जब कॉल आता है। तो इस तरह के इंस्टेंसेस मेरे साथ बहुत हुए। एंड उसके अलावा है कि कोई रूम पे आ जाता था कुछ पूछने वगैरह वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें। और आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ हुआ है। फ्लैगिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट significant thing and it has happened so many times with me कि ये almost it has become a poetic metaphor सभी के लिए कि आप उसके एग्जांपल्स ही दी जाते हैं कि मेरे ओए इसलिए नहीं थे, फ्लैग होते थे। The CS fundamental part in OA is all these three things and I was mostly flagged. तो flagging का भी ध्यान रखना होता है OA में and it is very important, equally important अगर fifth element देखा जाए तो CS fundamentals के अलावा flagging का ध्यान रखना है। प्लस डीएसए क्वेश्चंस, तो डीएसए क्वेश्चंस आई गेस स्ट्राइवर की शीट अगर करी है, ब्लाइंड 75 अगर करा है, लीड कोड पे रेगुलर प्रॉब्लम ऑफ द डेज कर रहा है कोई भी, व्हिच इज वेरी यूजुअल थिंग, एक साल तक थर्ड ईयर में आने के बाद, तो इट इज एनफ। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहादुर, सेम क्वेश्चन फॉर यू कि आपके लिए फंडामेंटल्स का क्या रोल था आपके ओए में। आपका जो इन्फोसिस का इंटरव्यू रहा हो या फिर ENTNT का रहा हो, या जितने भी इंटरव्यू आपने दिए, उन सब में क्या रोल था फंडामेंटल्स, कितने % वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कैसे आपने प्रिपेयर किया, आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या थे? रिसोर्सेज तो सेम ही है जैसा शुभम का, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स ही है और साथ में रहते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कंटेंट शेयर करते हैं। रिसोर्सेज तो सेम ही है, लेकिन मैंने मतलब जितने भी इंटरव्यूज दिए उसमें और ओए भी दिए, तो मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS एंड उप्स के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो उप्स और DBMS से ही होते हैं। तो मतलब मैं मेरे को जो लगा था कि अगर तुम कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो तुम्हें इतने काफ़ी है कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया है, और वो अगर कोई अलग कॉलेज से, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उनका टीचर कितना कंटेंट उन्हें डिलीवर करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हमने सफिशिएंट कंटेंट डिलीवर किया था, लेकिन इतना पूछा ही नहीं गया था कभी। तो ये, और उसके अलावा DBMS में तुम वही लगभग का ही प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे, वो फॉलो कर सकते हो और उसके नोट्स से तुम पढ़ सकते हो PDF डाउनलोड करके। इसके अलावा जो उप्स है उसके लिए वो दो चिट शीट जिसमें तुम्हें नियरली 50 क्वेश्चन है, एक में 30 और एक में 20 समथिंग। तो वो मतलब 99% क्वेश्चंस वहीं से आ रहे थे। इससे पहले मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका अगर तुम यूट्यूब पे भी जाके देखोगे तो तुम्हें सिर्फ 4 पिलर्स के बारे में ही बताते हैं वो हर यूट्यूबर, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस है ही नहीं है। और उनको पढ़ के अगर तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, वो क्वेश्चंस उसमें बहुत डिटेल्स में पूछे जाते हैं, जो जो सीट है उसमें अवेलेबल है। मैं वो शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स के साथ, चाहे तो उनको ये डिस्क्रिप्शन में डाल देगा ताकि तुम्हें भी हेल्प हो जाए। श्योर श्योर। और और उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए भी तुम मतलब क्लास नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे मतलब कंटेंट तुम्हें ठीक नहीं मिला और क्लास में अगर ध्यान नहीं दिया, तो उसके अलावा भी तुम्हें मतलब यूट्यूब पे लगभग 10 की एक प्ले लिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो भी तुम फॉलो कर सकते हो। उसमें भी अच्छे से पढ़ाया गया है और उसके भी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये, और कंप्यूटर नेटवर्क का इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता था, ये यही मेजर सब्जेक्ट थे। और ओए में मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते थे वो उप्स और DBMS से होते थे। तो मतलब मैं कभी किसी ओए में रिजेक्ट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सारे ओए मेरे क्लियर हुए। बस एक ENTNT का ओए मेरा नहीं हो पाया था, तो उसमें मेरे को मतलब प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसमें। मतलब उन्होंने देखा था जिनकी प्रोफाइल अच्छी थी, तो उन्होंने ओए नहीं देखा उसमें और उनको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ गया था, तो मुझे इंटरव्यू कॉल आया था ENTNT से। तो इंटरव्यूज में देखे तो मतलब तुमसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उप्स से पूछे जाते हैं और DBMS से, उसके अलावा DSA क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उप्स तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है CS फंडामेंटल्स में, क्योंकि हर इंटरव्यू में तुम देखोगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं और काफ़ी डीप डिस्कशन होता है। इसके अलावा इंटरव्यूज में, और जैसे इन्फोसिस का मेरा प्रोसेस रहा, उसमें भी स्टार्टिंग में जो ये था तो उसमें तो DSA क्वेश्चन ही थे। उसके बाद जब सिस्टम डिज़ाइन था तो उसमें तुम्हें उप्स के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में, क्योंकि अब उसमें
लाइव क्वेश्चन था कि तुम्हें लाइव कंटेस्ट डैशबोर्ड डिजाइन करना है जिसमें लाइव रेटिंग दिखनी चाहिए स्टूडेंट्स की, जैसे वो क्वेश्चन सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें डीएसए और उसके कॉन्सेप्ट काम आते। और इसके अलावा जब इंटरव्यू हुआ था वहाँ भी मेरे से उप्स और डीबीएमएस सबसे ज़्यादा पूछा था, और एसक्यूएल भी पूछा था, मतलब क्वेरीज लिखवाते हैं वो। तो एसक्यूएल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसे डीबीएमएस थ्योरेटिकल नहीं चलेगा, तो मैं एसक्यूएल भी आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू दे आर आस्किंग टू राइट क्वेरी। और इसके अलावा मतलब मैं यही कहूँगा कि तुम मतलब कंप्यूटर नेटवर्क को अगर तुम कम स्ट्रॉन्ग है तो भी चलेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन तुम्हें जैसे सिस्को जैसी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी तुम्हें जरूरी है। बाकी तो मतलब उप्स और डीबीएमएस काफ़ी अच्छे होने चाहिए, और 70% ऑपरेटिंग सिस्टम। रिज्यूमे का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी प्लेसमेंट्स के टाइम कि आपने आपका रेज्यूमे कैसे टेलर किया हुआ है, क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या आपकी स्किल्स हैं रेज्यूमे। तो रेज्यूमे का रोल क्या रहा स्टार्टिंग से और एंड तक। जैसे कि एमएमटी आई थी, एमएमटी ने सबको अलाउ किया था, कोई सीजीपीए इशू नहीं था, लेकिन उसने रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, और मोर स्पेसिफिकली सीजीपी बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी 8 सीजीपी। तो वैसे ही आप दोनों के लिए क्या ऐसी चीज़ें थी जो रेज्यूमे के हिसाब से आपको देखनी चाहिए थी, क्या कैसा आपका रेज्यूमे था और कहाँ वो स्टैंड आउट हुआ। रेज्यूमे मतलब देखे तो रेज्यूमे का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी किसी कंपनीज में ऑन कैंपस भी, ऑफ कैंपस तो होता ही है, लेकिन ऑन कैंपस भी वो सबसे पहले रेज्यूमे थ्रो आउट करते हैं। तो रेज्यूमे का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। उसमें तुम्हारे मतलब जो तुमने प्रोजेक्ट्स किए और इंटर्नशिप किए उनको मतलब अच्छे से हाईलाइट करो, जो तुमने एक्चुअल में काम किया। और ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास प्रोजेक्ट्स आइडिया नहीं होते कि वो क्या करे, तो वो इधर उधर से क्लोन करते हैं और वो सेम चिपका देते हैं। ऐसा ही तो उस तरीके से काम नहीं चलेगा। तुम उसमें मतलब कुछ नई चीज ऐड करो, चाहे तुमने उधर से कॉपी किया हो, लेकिन उसके बाद फिर उसे इम्प्रूव करो, ताकि तुम भी कुछ उससे इन डेप्थ नॉलेज ले पाओ और उसको नंबर्स में दिखाओ। मतलब ऐसे भी नहीं कि सिर्फ नंबर्स बोल दिया तो कुछ भी नंबर्स डालो, जो मतलब एक्चुअल में काम किया हो। तुम उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, लेटेंसी इंक्रीज कर सकते हो, ये सारी चीजें। और मतलब यही है कि तुम्हारा जो जो वो जो भी काम किया हो उसको नंबर्स में दिखाओ कि तुमने ये किया और इससे इतना इम्प्रूव हुआ। तो ये वर्क करता है। अगर तुम ऑफ कैंपस भी अप्लाई करोगे तो तुम्हारे ऑफ कैंपस भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे भी 2-3 कंपनीज में ऑफ कैंपस रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए, जैसे कि रिफलिंग, डिलीवरी एंड इसके अलावा भी 2-3 कंपनीज है, लिंक्डइन। तो रेज्यूमे का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है इस तरीके से। और ऑन कैंपस में जब तुम्हें सबसे पहले मतलब जैसे मेरा ENTNT का था, उसमें मेरा OA नहीं निकला था, लेकिन फिर भी मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। तो इसमें मेरा जो इंटरव्यू कॉल आया था वो कुछ बच्चों को ही आया था जिनका OA नहीं निकला, एक या दो को। तो उसमें उन्होंने प्रोफाइल देखी थी बच्चों की, कि अगर कोई जेन्युइन बंदा है जिसने काम किया है तो उसको मतलब इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए। तो इस वजह से तो मतलब प्रोफाइल रेज्यूमे का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर तुम्हारा OA भी नहीं निकल रहा और अगर कंपनी ने तो तुम्हारा रेज्यूमे थ्रो आउट किया, तो हो सकता है तुम्हें डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाए। जैसे जिनका OA निकला था ENTNT में, उनको OA के बाद में टेक होम असाइनमेंट होता है, तो उसमें उन्हें कुछ मतलब डिजाइन दिया था ना, उन्हें वो बिल्ड करना था। और इसमें मुझे ये फायदा था, मेरा OA क्लियर नहीं हुआ फिर भी मुझे वो असाइनमेंट नहीं मिला। नहीं तो मुझे उधर भी टाइम वेस्ट करता और उसके बाद रिजेक्ट होता तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। उसकी बजाय मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ गया, तो मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ। तो रेज्यूमे इस तरीके से तुम्हारी हेल्प करता है। तो तुम्हारे पास मतलब प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप एक है तो तुम्हारे रेज्यूमे में एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए, और अगर इंटर्नशिप 2 है तो 2 प्रोजेक्ट भी चल जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट सॉलिड होने चाहिए और तुमने जो काम किया है उसे नंबर्स में कि तुमने ये किया तो इससे इम्प्रूव हुआ। और इसके अलावा अगली चीज़ प्रोजेक्ट्स में कि तुम सिर्फ जो तुम्हें यूट्यूब से मिल रही है वो ही ना करो, उनको आगे बढ़ाओ। कि जैसे कि तुम्हारा हो गया पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन नहीं आता, उन्हें पता भी नहीं है, और वो मतलब सिर्फ बना के लोकल पे चला के छोड़ देते हैं। उसके अलावा तुम AWS पे होस्टिंग करो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो उनको यूटिलाइज करो अच्छे से। ये सारा। और इसके अलावा मतलब मैं कहूँगा कि तुम्हें आजकल सिस्टम डिजाइन भी पूछा जा रहा है।
तो मतलब सिस्टम डिजाइन का तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तुम एटलीस्ट कोई प्ले लिस्ट फॉलो करो और समझो सिस्टम डिजाइन को। अगर तुमसे किसी चीज़ का डिजाइन नहीं करवा रहे एक्चुअल में, लेकिन वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, तो सिस्टम डिजाइन भी जरूरी है। सेम क्वेश्चन फॉर यू शुभम, और उसके साथ मेरे को एक और क्वेश्चन भी पूछना है कि रेज्यूमे के बाद में जो मेन चीज़ें आती हैं, चाहे आपका इंटरव्यू हो, तो उसमें वो सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए। पहली बात तो वो आइडिया, जो आपके प्रोजेक्ट्स थे उसके पीछे क्या आइडिया था, कैसे प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं, और प्रोजेक्ट्स को आप जब एक्सप्लेन करने वाले हो तो क्या आपको चीज़ें ऐसे प्रिपेयर करनी है कि आप उसको अच्छे से डिलीवर कर पाओ। सो आई थिंक रिज्यूम को लेके, डिजाइन को लेके जो भी पॉइंट्स राज ने पुट किया, आई विल एग्री विद द मोस्ट ऑफ देम, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम. Some things that I'd like to add is कि keywords are very important. तो अगर कोई इंसान है जिसने फुल स्टैक डेवलपमेंट की है बट वो कीवर्ड यूज नहीं कर रहा, वो रिएक्ट यूज नहीं कर रहा, वो एक्सप्रेस या नोड इस तरह के कीवर्ड्स या मन इस तरह के कीवर्ड अपने रिज्यूम पे पुट नहीं कर रहे हैं, दे जस्ट डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट कि मैंने फ्रंट एंड एक फ्रेमवर्क में किया, बैक एंड एक फ्रेमवर्क में किया, मैंने क्लाउड पे होस्ट कर दिया. इस तरह के जेनरिक टर्म्स यूज करने के बजाय स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करना इज वेरी positive. It pushes the resume by double digit points. If the ATS score is in single digits, it would jump by double digits. Keywords are very important. Second, like you said कि impact दिखना चाहिए, तो अगर कोई प्रोजेक्ट क्लोन भी किया है तो ऐसा नहीं है कि जितना किसी प्लेलिस्ट में करके दिखाया उतना ही करके छोड़ दिया. किसी और प्लेस में कोई और फीचर पढ़ा, जैसे पेमेंट गेटवे पढ़ा या फिर लोड बैलेंसिंग पढ़ा किसी प्रोजेक्ट में, तो अपने प्रोजेक्ट में वो कॉन्सेप्ट खुद से इम्प्लीमेंट कर पाना इज एक्चुअली अ स्किल. तो देयर आर टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की लोड बैलेंसिंग एक अलग चीज़ होती है और मेरी फुल स्टैक एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है. बट अगर मैं लोड बैलेंसिंग या कॉन्सेप्ट अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझ में आता है. मुझे समझ में आता है कि लोड बैलेंसिंग एज अ कॉन्सेप्ट किसी और चीज़ के साथ कितने अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इफ़ यू कैन इंटीग्रेट स्टफ, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, और ये चीज़ रेज्यूम पे दिख जाएगी अगर मल्टीपल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के अराउंड प्रोजेक्ट्स हैं. तो मेरे जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स थे, इट वाज बेस्ड ऑन माय पर्सनल यूज केस कि जैसे कश्मीरी लैंग्वेज इज अ वेरी नीश लैंग्वेज, देयर इज नॉट मच कंटेंट कि तुम इसको, तो एलएलएम्स की ट्रेन नहीं है तो आई कैन नॉट यूज एलएलएम्स की मेरे को इसका ट्रांसलेशन करके बताओ, एंड देयर इज नो गूगल ट्रांसलेट स्टफ आल्सो. आई थॉट कि मेरे जो दोस्त हैं, आई वुड आस्क देम कि तुम अपने रिकॉर्ड करो वर्ड्स बोलते हुए, एंड देन समवन हु वांट्स टू लर्न दिस लैंग्वेज, वो भी अपने मतलब वो स्पीकिंग प्रैक्टिस करेगा जो स्क्रीन पे दिया होगा उन वर्ड्स को पढ़ के. एंड व्हाट द एप्लीकेशन विल डू इज कि जो एक यूजर बोल रहा है स्क्रीन पे पढ़ के, इट वुड मैप the word, the voices that it hears with the actual authentic accent जो पहले से stored है. तो इनकी मैपिंग के लिए इट वुड यूज डिफरेंट साउंड लाइब्रेरीज यूज होंगी, एफएफएम पैक यूज होगा, फ्रेमवर्क्स होंगे फ्रंट एंड बैक एंड डिजाइन के लिए, फिर उसको होस्ट करना पड़ेगा, और इट वुड देखना पड़ेगा कि जो फ्री क्रेडिट्स है, लाइक राज आल्सो सेड कि स्टूडेंट्स को फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो वर्सल पे हम बैक एंड सर्विसेज नहीं चला सकते, तो ये देखना पड़ेगा कि वर्सल पे फ्रंट एंड चलाना पड़ेगा, फिर कहीं पे तुम्हें बैक एंड चलाना पड़ेगा, फिर जो डेटा स्टोर होगा कि जो लोगों ने बोला है, आवाज़ें रिकॉर्ड की है, उनको स्टोर करना है डेटाबेसेस, ऐसी फ्री सर्विसेज इंटीग्रेट करना, अलग अलग वो चीज़ें. तो मेरे इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ दिख रही थी एज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ स्पॉट. और मेरे बाकी के प्रोजेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पे थे, तो इट वाज अ डेटाबेस इंजन कि डेटाबेस एक्चुअली में काम कैसे करता है, हाउ द CRUD ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, सर्च एंड डिलीट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, इंसर्ट ऑपरेशंस, उसके लिए एल्गोरिथम्स यूज करना. तो दैट इज समथिंग वेरी नीश. तो मोस्ट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल गो इनटू इट, बट दैट इज समथिंग आई डिड. पर तो वो एक मेरा यूएसपी भी था कि ज़्यादातर मतलब आई डोंट थिंक कैंपस पे किसी ने भी अभी तक इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और उनको किया भी है तो रेज्यूम पे डाला है. तो वो एक यूनिक चीज़ हो जाती थी कि ओके ठीक है, दिस इज समथिंग फ्रेश एंड इसके बारे में बात हो सकती है. तो सेकंड थिंग वुड बी, फर्स्ट वुड बी द कीवर्ड्स, सेकंड वुड बी टू इंटीग्रेट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि दैट शोज कि तुम्हें एक टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है, तुम्हें दूसरी भी आती है, एंड यू कैन मेक देम वर्क टुगेदर. थर्ड थिंग इज कि यूएसपी क्या होने वाला है. तो फुल स्टैक के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो बहुत सारे बच्चों के पास होंगे, बट इफ यू कैन ऐड समथिंग पर्सनल, इफ यू कैन ऐड समथिंग somewhat niche but not very niche,
कि ऐसा भी नहीं है कि एआई को बहुत ही नीश बना के कि आई वुड ट्रेन अ मॉडल टू डिटेक्ट प्लास्टिक, दैट वुड बी समथिंग लाइक बेयरली नीश। तो बहुत ज़्यादा जेनरिक नहीं है कि हाँ मैंने एआई यूज़ किया, बहुत ज़्यादा नीश भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत ही क्लोज मैथमेटिकल मॉडल पे काम किया। इट इज़ प्रैक्टिकल एंड इट इज़ नीश। if it makes sense, तो add a personal element or uh, find something that is niche but not too much. तो ये तीन चीजें would be very important resume के लिए। एंड देन देयर इज द जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स, जो सारी एडवाइस इंटरनेट पे काफी रेडिली अवेलेबल है कि कैनवा टेम्पलेट्स और वर्ड डॉक्यूमेंट्स से बेटर है कि एक ओवरलीव टेम्पलेट यूज की जाए। Jake's resume template is something that we both of us used. In fact, a lot of students used Jake's resume template over Leap पे। It is very simple। बस जाके टेम्पलेट खोलनी है, इट इज बेसिक लेटेक्स कोड, और उसमें बस अपना डेटा एडिट करना है और उसको इनपुट करना है। तो इट एनीवन कैन स्पेंड अ फ्यू आवर्स एलएलएम्स का यूज करके और सीख सकता है। तो वो यूज करना इज इम्पोर्टेंट आई वुड से। और उसके अलावा एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम सब फ्रेशर्स ही होने वाले हैं, वी आर स्टूडेंट, तो सेक्शंस का ऑर्डर वो ये समथिंग जो मैटर करेगा। जैसे मतलब आई हर्ड इट फ्रॉम माय सीनियर, वो ऑलरेडी काम करते हैं, तो ही सजेस्टेड मी कि अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो अपने एक्सपीरियंसेस को ऊपर रखो। उसमें प्रोफाइल सेक्शन, जो एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है कि आई एम दिस स्टूडेंट ऑफ दिस ब्रांच, आई एम इंटरेस्टेड इन स्टफ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ओनली व्हाट यू वर्कड ऑन। तो एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। देन कम्स द प्रोजेक्ट्स पार्ट कि तुमने किस जगह काम किया है, देन इज किन चीज़ों पे काम किया है, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एजुकेशन एंड दैट इज टेक्निकल स्किल्स, दैट इज मोस्टली इररिलेवेंट, इसमें मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बट ऑफ कैंपस के लिए एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स आर द प्रायोरिटी थिंग। ऑन कैंपस के लिए आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच, बट एक थोड़ा आई कैंडी हो जाता है अगर एक्सपीरियंस ऊपर है और उसके बाद प्रोजेक्ट्स आते हैं, एंड देन देयर एजुकेशन एंड पे रखा जाए और टेक्निकल स्किल्स। दिस वुड मेक इट इजियर फॉर द इंटरव्यूअर एंड फॉर द एटीएस सिस्टम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑन कैंपस, आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस एज द सीआरसी, तो एचआर कई बार ऐसे बोलते हैं कि दे टेक ऑल द रिज्यूमेस ऑफ स्टूडेंट्स, फिर वो उनको सिस्टम में फीड करते हैं और सिस्टम उनको रेट करता है। तो रेट करेगा और फिर उसमें से ईमेल्स ड्रैग आउट करके फिर उनको टेस्ट लिंक्स भेजेगा। तो इफ द एटीएस स्कोर इज नॉट गुड, तो कहने को ऑन कैंपस होती है, बट इट इज रेटेड स्लाइटली लोअर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग। और प्लस अगर ईमेल गलत हो गया या ठीक से स्कैन नहीं हो पाया पुअर एटीएस की वजह से, कई बार टेस्ट लिंक्स भी नहीं आए हैं बच्चों को। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट एटीएस अच्छा रखो, भले ही ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो, और प्रेफर कि एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स ऊपर रहें, फिर टेक्निकल स्किल्स, फिर एजुकेशन। ऑन कैंपस में प्रोफाइल सेक्शन रख सकते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टेल द इंटरव्यूअर कि तुम किस ब्रांच से हो एंड ऑल दैट, बिकॉज दे आर इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ पीपल। दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड एज द सीआरसी, एचआर से बात करके रेगुलरली और इनके फीडबैक से। दीज आर द फोर थिंग्स आई वुड से आर इंपॉर्टेंट रिज्यूम के लिए। ऑलराइट, कमिंग टू द फाइनल राउंड, ऑलमोस्ट हर कंपनी का फाइनल राउंड एचआर राउंड ही होता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? कि वॉज इट चिल, एज दे से कि चिल होता है एचआर राउंड, या फिर कैसा रहा? क्या क्वेश्चंस थे, या ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको रेडी रखने चाहिए? तो मैंने जितनी भी कंपनीज में इंटरव्यू दिए, जो ज़्यादा नहीं थे बिकॉज मैं मोस्टली ओएस में बाहर हुआ हूँ, देवर 4 और 5। टेक्निकल्स मेरे अच्छे जाते हैं, बट एचआर में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंपैटिबिलिटी मेरे साथ। तो ब्राउजर स्टैक में इट हैपेंड कि देयर रिक्वायरमेंट वाज डिफरेंट एंड द रेज्यूमे दैट आई हैड सबमिटेड वाज डिफरेंट, सो देयर वाज अ मिसमैच इन दैट डायरेक्शन। वो मेरे पॉइंट्स लूज हुए। And L&T was good. L&T was actually a mix of technical and HR. तो उन्होंने पहले टेक्निकल्स का एक पूरा पार्ट किया एंड देन देयर वाज एचआर, और इट वाज बेसिक स्टफ कि फैमिली के बारे में पूछेंगे, करियर एस्पिरेशंस अगले 5 साल, बिकॉज दे वांट टू नो कि व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी। तो इसीलिए वो 5 ईयर क्वेश्चन आई थिंक वो पूछते हैं कि अगर आप 5 साल में, भले इस कंपनी के साथ नहीं किसी भी कंपनी के साथ आप उसको देखते हो, बट आप किस तरह से देख रहे हो, इट टेल्स अ लॉट अबाउट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी एंड वेदर यू आर compatible with the environment. So 5 year plan, they talk about your family, they talk about your extracurriculars, if you have had any conflict resolution stuff going on in your life, if you have had to work with a team,
if you have had to work with a team but on technical projects, so it is a collaborative development of थॉट्स। ये बहुत रेयरली पूछते हैं, बट कुछ डेवलपमेंट बेस्ड रोल्स के लिए भी ये पूछ लेते हैं कि आपने जेनरिक टीम में काम किया है या फिर आपने एक प्रोजेक्ट पे डेवलपर्स के साथ काम किया है। तो ये 4 सवाल आई वुड से आर रिपीटेटिव, कि ये हर बार पूछते ही हैं। एंड ओरेकल में भी इंटर्न के लिए जो था, नॉट द फुल टाइम वन, intern में भी they were asking about the projects and then they were more interested in the why of those projects। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे इनिशियल प्रोजेक्ट्स वर मोस्टली क्लोन बेस्ड या जो जेनरिक उठा लिए, यूट्यूब से देखा, सीख लिए और पुट रेज्यूम पे डाल दिए। बट दे वर इंटरेस्टेड इन कि क्यों किया ये प्रोजेक्ट, ये टेक स्टैक जो यूज किया है वो क्यों किया है, इज देयर एन ऑल्टरनेटिव, इफ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव व्हाई हैव यू नॉट यूज्ड इट। तो इन चीज़ों के जवाब होने चाहिए। And they're not interested in the all the technical mumbo jumbo, they are more interested in the mentality and the mindset of the student कि वो काम करते वक्त किस तरह का है। तो जो 4 जेनरिक सवाल, वो फैमिली एंड स्टफ, एंड देन देयर इज कि जो मोटिवेशंस रही हैं रिज्यूम पे, जो भी चीजें हैं उनकी मोटिवेशंस क्या रही हैं। दैट इज वाज द माय एचआर एक्सपीरियंस। बहादुर, सेम क्वेश्चन फॉर यू कि आपके लिए एचआर राउंड कैसा रहा, क्या क्वेश्चंस थे और कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब मैंने जितनी भी एचआर इंटरव्यू दिए है तो उसमें मैंने मतलब एक चीज़ नोटिस किया है कि तुम्हारा जो ज़्यादातर डिस्कस होता है वो रेज्यूमे पे होता है। अ, उम, भी अगर हम कहें तो मतलब ज़्यादा टेक्निकली नहीं होता, लेकिन ओवरऑल कि तुमने मतलब कोई चीज़ें कैसे तुमने हैंडल की, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उसमें टीम कॉन्फ्लिक्ट्स आया तो उनको कैसे हैंडल किया, और टेक स्टैक के बारे में जैसा अभी शुभम ने बताया था कि अगर तुमने ये टेक स्टैक क्यों चूज़ किया, इसका अल्टरनेटिव कोई है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या कॉन्स है, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा तुम्हारा बेसिक एक्चुअली दे आर चेकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ज़्यादातर यही होता है, मतलब टेक्निकली कह सकते हैं, मतलब जो जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं हम अगर गूगल करते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ होता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब ज़्यादातर जो होता है वो रेज्यूमे के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने जो नोटिस किया। और मेरा मतलब जो इन्फोसिस का भी था तो मेरा पर्सनली एचआर इंटरव्यू नहीं था, मतलब वो जो था वो मिक्स था, एचआर कम टेक्निकल इंटरव्यू था। तो उसमें मतलब जो था मेरा जो इंटरव्यू चला था इन्फोसिस का वो अराउंड 1 घंटे तक चला था। तो जो उसका प्रोसेस था वो कुछ इस तरीके से था कि मेरे को सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह और उसने फैमिली के बारे में पूछा था, और यही मतलब कि तुमने सीएस ब्रांच क्यों ली है, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ था, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एचआर क्वेश्चंस ही है। और तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में पूछते हैं कि तुम्हें अगर थ्रो करना होता है तो तुम्हारे पास मतलब एटलीस्ट ये होना चाहिए कि तुम एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट तक अपने प्रोजेक्ट को डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो उनके सामने। क्योंकि कभी कभी वो बस यही चेक कर सकते हैं कि तुम्हें कितना पता है इसके बारे में। तुम अगर 2 मिनट बोल के ही रुके तो फिर वो तुम्हारा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते जाना चाहिए कि तुम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो एटलीस्ट 10 मिनट तक। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब कि कैसे तुमने ये क्यों किया, और मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की और क्या उसका वर्क फ्लो है, ऐसे क्वेश्चंस। और जो मेरा जो कंप्लीट इंटरव्यू था तो उसमें उसके बाद में था डीएसए क्वेश्चन थे। तो डीएसए क्वेश्चन में मेरे से 4-5 डीएसए क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन थे उनका उन्होंने खुद लिखे थे कोड, और आउटपुट पूछा था मेरे से। उसके बाद में रिटर्न भी हुआ था। तो रिटर्न में मेरे को बाइनरी सर्च का क्वेश्चन दिया गया था, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद डीएसए क्वेश्चंस के बाद उप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उप्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद में डीबीएमएस में, और फिर उसके बाद एसक्यूएल क्वेरीज, और फिर उसके बाद में जो रेज्यूमे में टेक्निकल स्किल्स में मैंने लिखा हुआ था सीआई/सीडी पाइपलाइंस, एडब्ल्यूएस वगैरह इनके पास, और जो एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी इंटरव्यू में। तो मतलब अगर कहे एचआर का तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर को कि वो क्या पूछता है। लेकिन मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए तो उनमें मेरा जो एचआर में भी डिस्कशन रहा है वो रेज्यूमे पे ही रहा है।
आपकी इस पूरी प्लेसमेंट जर्नी में, इनफैक्ट प्लेसमेंट जर्नी या कॉलेज जर्नी जितनी भी थी आपकी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक्स रही जो अपने करियर आपको लगता है कि वो नहीं करनी चाहिए थी? मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज़ है जिसका मुझे रिग्रेट अभी भी होता है, चाहे मैं प्लेस हो गया हूँ लेकिन फिर भी मुझे रहता है कि मेरी सीजीपीए पे मुझे ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि मेरी सीजीपीए काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में लिमिटेड ऑप्शन थे। अब मैं प्लेस भी हो गया लेकिन फिर भी अगर तुम ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते हो तो कुछ कुछ कंपनीज में स्पेसिफिक लिखा होता है कि तुम्हारी सीजीपीए 8+ होनी चाहिए, तो तुम वहाँ अप्लाई भी नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं जब रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो रहा होता है तो उसमें भी फर्क पड़ता है। और जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यूअर भी जब सीजीपीए अगर पूछ ले तो फिर तुम वहाँ बताते हो तो ये तुम्हारा एक नेगेटिव पॉइंट ही होता है। तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत सीजीपीए का। हाँ, मेरा थोड़ा स्टार्टिंग में प्लान लगता है कि मुझे स्टार्टअप करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीजीपीए को नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब मुझे एकेडमिक्स भी ठीक रखने चाहिए थे, क्योंकि मेरी थर्ड ईयर से पहले जो मेरी सीजीपीए थी वो लेस देन 6। वो तो मैंने जब थर्ड ईयर फिफ्थ सेम में और सिक्स सेम में इम्प्रूव की थी कि कंपनी जाएगी तो एटलीस्ट 6+ तो रखो, क्योंकि 6 से नीचे तो वो अलाउ नहीं करते। तो इसलिए सबसे बड़ा रिग्रेट यही है मेरा कि सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। तो मैं मतलब स्टार्टिंग से, तुम अगर एक्स्ट्रा करिकुलम भी कर रहे हो फिर भी तुम्हें मतलब ये मैंने सीखा कि सीजीपीए लाना इतना मुश्किल नहीं है। 8 लाना तो मुश्किल नहीं है, अगर मैं थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन 8 लाना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने जो पेपर्स दिए वो बिल्कुल मैं ऐसे बस सुबह सो के उठ के बिना पढ़े देने चला जाता था, दे के आ जाता था। तो वो उसमें मेरी ही गलती है जो मेरी सीजीपीए कम है। क्योंकि अगर मैं चाहता था सीजीपीए अच्छी, लेकिन अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आगे जो भी ट्राई, मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि सीजीपीए पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि सबसे पहला फैक्टर तुम्हारा यही होता है। तुम्हारा ओए निकले ना निकले वो मैटर नहीं करता, तुम इंटरव्यू दोगे या नहीं दोगे। सबसे पहला यही है कि तुम्हारी सीजीपीए है तो तुम अप्लाई कर पाओगे। तुम्हें कुछ भी आता हो, तुम्हारे सीजीपीए नहीं है तो कोई काम करना नहीं तो तुम्हें आता है। शुभम, आपके लिए क्या ऐसी चीज़ें रहीं? फर्स्ट आई वुड से कि मैंने इंटर्नशिप्स कम की हैं। तो द कॉज वाज कि आई फॉर अ लॉन्ग टाइम आई थॉट कि मैंने थर्ड ईयर में शुरू किया है और मेरे आसपास के जो पीयर ग्रुप है दे वर वर्किंग ऑन टेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो दे आर वेरी फार अहेड। अगर वो इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, तो मैं इनसे कम स्किल सेट मेरे रिज्यूम पे है, मैं अप्लाई करूंगा, देयर इज नो चांस। दिस शुडंट बी द केस। कम स्किल सेट ही है, बट इफ द अप्रोच इज राइट तो अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई इंटर्नशिप्स मिल ही जाती हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं फुल स्टैक में ही या किसी एक स्पेशलाइज डोमेन में अपनी पीक ऑफ इंटर्नशिप्स करूँ या पेड इंटर्नशिप्स करूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में एटलीस्ट टेक में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स करो। और हमें एटलीस्ट इस बात का बेनिफिट है कि वी कैन डू रिमोट इंटर्नशिप इज वेल। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ कि हमें पैसे मिले तभी हम करेंगे, हमें वरना बहुत खर्चा होगा। तो अगर किसी को फ्रंट एंड आता है तो फ्रंट एंड में इंटर्न करनी चाहिए, बैक एंड आता है बैक एंड में करो, फुल स्टैक आता है तो उसमें करो, बट कीप अप्लाइंग, कीप रीचिंग आउट टू योर सीनियर्स इंटर्न्स के लिए कि बिकॉज दे माइट हैव इंटर्न समवेयर और उनकी इंटर्नशिप अच्छी होंगी। तो जिन्होंने इंटर्नशिप अच्छी जगह पे की है दे माइट पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू और दे माइट रिकमेंड योर रेज्यूमे डायरेक्टली। तो ये एक चीज़ है जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने सीनियर्स के टच में रहो जिन्होंने अच्छी इंटर्नशिप की है। उनसे पूछो इफ द प्लेस दे हैव इंटर्न वहाँ से अभी भी कनेक्ट में है वो, और अगर है तो इफ दे कैन रिकमेंड योर रेज्यूमेज। ये चीज़ मैंने नहीं की and I regret it because ये की होती तो it would have been much easier and it would have been more fun to talk about in during interviews. Second, I would say कि प्लेसमेंट्स को सीरियसली लेना है थोड़ा। ये एक चीज़ मैंने की सीजन के स्टार्ट में कि सीआरसीबी बन गया, मैं उधर भी काम कर रहा हूँ एंड आई हैड अ रफ आइडिया अबाउट किस तरह की कंपनीज को हम रीच आउट कर रहे हैं, विच कंपनीज माइट एंटर। तो आई वाज नॉट टेकिंग जो कंपनीज कैंपस पे आ रही हैं उनकी प्रोसेस सीरियसली कि ठीक है अभी इसमें नहीं हुआ तो अगली आएगी, कोई और आएगी, कोई और आएगी, कोई और आएगी। एंड दिस वाज अ वेरी मेजर रीजन कि मेरे ओएस भी मैंने सीरियसली लिए नहीं, मैंने प्रॉपर साउंड प्रूफिंग या बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं की कि जहाँ पे भी मैं हूँ जिस भी सिचुएशन में हूँ आई जस्ट हैड टू अटेम्प्ट इट। आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, नॉट फॉर द सेक ऑफ एक्चुअली होपिंग टू गेट शॉर्टलिस्टेड beyond this round and get this offer। तो थोड़ा सा डू और डाई टाइप ऑफ सिचुएशन बनाना
सेट अ बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ सीटीसी के बेसिस पे, रोल के टाइप पे, कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन पे। बट एक बार वो कट ऑफ बना लो तो बी वेरी वुल्फ लाइक इन गेटिंग ट्राइंग टू गेट दैट ऑफर। इतना पैसिव नहीं रहना। मैं आई वाज वेरी पैसिव, व्हिच इज वन रीजन आई वाज फेसिंग सो मेनी रिजेक्शंस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड द सेकंड वाज कि इंटर्नशिप्स करो while you have time, do a lot of lead code problems and do a lot of internship third year में, first year में, second year में. So these are the only two things I would say is करनी चाहिए. Right, just to sum up this interview, I have one last question. What are the things that stood out for you during your placement journey first and during your whole college journey, I would say, from the first year to the fourth year? What were the things that you really want कि आपके juniors हैं या जो भी आपको देख रहे हैं, you really want कि वो चीज़ करें, और ऐसी क्या चीज़ें रहीं जो आपके लिए स्टूड आउट करी अलग से, आपके लिए आपने वहाँ पे अगर एफर्ट्स पुट किए तो आपके लिए उन रिजल्ट भी आया? So first I would say is, and I cannot put emphasis on this enough. And I don't understand why most people don't understand the importance of this. College is the place of intersection of everything that is good in this country. हर तरह के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, एंड दे जस्ट कम हियर, दे मीट फॉर 4 years, और वो यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ इस देश में नहीं, इस देश के बाहर भी कई जगह जाने वाले हैं. सो दिस नेटवर्क ऑफ पीपल, दिस इज सो वैल्यूएबल. मतलब मैं अभी भी अपने सीनियर्स के साथ टच में हूँ, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव. मुझे कोई भी डाउट्स होते हैं, आई जस्ट आस्क देम. मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होती है, आई जस्ट आस्क देम. मुझे कोई भी इनसिक्योरिटी होती है कि यार जॉब जब थी कि कैंपस ऑन कैंपस नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, दे वुड जस्ट रीअश्योर कि कुछ नहीं होता, तो हमारी कंपनीज में कोई रोल होगा कि पुश योर नेम फॉरवर्ड क्योंकि यू आर गुड, वी नो यू. तो गो आउट, मीट पीपल, मीट गुड पीपल. टेक में हो तो टेक में मिलो, कोर में हो तो कोर में मिलो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, डेवलपर. Meet people who are making things, meet people who are doing things. स्केल पे जाओ, put yourself out there. ये चीज़ एक है जो I would suggest everyone कि तुम्हें करनी ही चाहिए. ये चीज़ मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में की. I put myself out there. मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लिया, I was part of a society. फिर मैंने अपने टेक प्रोजेक्ट्स में भी काम किया. by meeting my good seniors, जो मेरे मेंटोर्स स्पॉट्स बन गए, उनसे मैं तभी मिल पाया क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स के जरिए अपने आप को I put myself out there, और मैं उनसे नॉर्मली मिला, एंड देन दे ग्रेजुअली ग्रो अप ऑन मी, और उन्होंने मुझे फिर मेंटर करना शुरू किया. पुट योरसेल्फ आउट देयर, मीट न्यू पीपल, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होता है. सेकंड इज एक्सप्लोर. इफ यू आर मीटिंग न्यू पीपल, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ऐसा जो मैंने सोचा भी नहीं होगा, या मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट हवा में की, मेरे को नाम पता है पर मुझे और कुछ नहीं पता. बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें बहुत इन डेप्थ काम कर रहे होंगे. इफ आई पुट माई सेल्फ आउट देयर, मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, एंड आई शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. कुछ नहीं, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं भी है, तब भी मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग एक टाइम पे, एक सीनियर ही वाज वर्किंग ऑन इट, वो मुझसे 2 या 3 साल सीनियर थे, वो के पास आउट हो चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ है, बट वो काम कर रहे थे. उन्होंने मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट. इसीलिए मैंने सीडैक में अप्लाई भी किया, एंड लुक वेयर इट गॉट मी. आई हैव अ वेरी गुड ऑफर, आई हैव अ वेरी गुड स्टेपिंग स्टोन, आई हैव अ वेरी गुड फाउंडेशन, जस्ट बिकॉज मैं उस एक इंसान से 2 या 3 बार ही मिला हूँ 4 साल की अपनी पूरी जर्नी में, और अभी मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ पे है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मीट पीपल. पता नहीं कौन कहाँ पे क्या सिखा दे. तो पुट योरसेल्फ आउट देयर, ट्राई न्यू थिंग्स, एंड लाइक डोंट पुट योरसेल्फ डाउन अगर कुछ नहीं आता. बेसिक डेवलपमेंट, बेसिक लीड कोड वो हो जाता है. एक साल लाइक आई सेड, थर्ड ईयर में हम दोनों ने ही थर्ड ईयर में काफ़ी सीरियसली स्टार्ट की थी डेवलपमेंट और लीड कोड, और फिर वी मेड इट क्वाइट फार इनफ जब तक प्लेसमेंट सीजन आया. तो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोग मुझसे आगे हैं. एवरीबडी इज इन देयर राइट प्लेस, सब कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं. जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, कीप डूइंग इट, कीप ग्राइंडिंग, डेली का डेली, एंड इट इज, आई थिंक 4 years of your life, they're very beautiful. I have only these two things: go out there, meet new people, try new things, and don't put yourself down if you cannot catch up with people a lot. Yeah, same question for you, Bahadur. मेरे लिए एक चीज़ है, वो जब सबसे ज़्यादा जो स्टैंड आउट की है वो मेरा स्टार्टअप ईयर. चाहे इसकी वजह से मेरी सीजीपीए कम रही हो, लेकिन मतलब उसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. मेरा टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग हुआ, और मुझे
लोगों से भी कनेक्ट करने को मिला था, जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसी के साथ साथ मैंने मतलब वेब डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट किया। मेरे पास मोटिवेशन था वेब डेवलपमेंट करने का। अगर कहीं मेरे पास शायद मेरा स्टार्टअप नहीं होता तो मैं इतना ही सीख के रह जाता जो यूट्यूब ट्यूटोरियल पे सिखाते। मैं बाकी चीज़ें नहीं सीख पाता जो डिटेल्स में मैंने सीखी, लाइक माइक्रो सर्विसेज, पेमेंट गेटवे एंड डिप्लॉयमेंट एक्सेट्रा, लोड बैलेंसिंग। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि मतलब इसने मुझे काफ़ी हेल्प की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी इसी ने रेज़्यूमे में प्ले किया, क्योंकि ये सबसे यूनिक था और ये एक रेंटल स्टार्टअप था, तो मतलब ये सिंपल ई-कॉमर्स भी नहीं था। तो और इसके अलावा जो था कि तुम्हें मतलब आस-पास का जो दोस्त है वो मतलब ऐसे बनाओ कि जो सेम डोमेन में हो, तो वो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे नई टेक्नोलॉजीज़ के, और वो क्या कर रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा। अगर तुम्हें कुछ आइडिया नहीं आ रहा तो किसी ने नया ट्राई किया होगा, तुम्हें लगेगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। इसके अलावा तुम्हें टेक के साथ में मतलब अप टू डेट रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो तुम मतलब यूट्यूब से भी सीख सकते हो नई-नई चीज़ें, और सब चीज़ ट्राई करनी चाहिए। एटलीस्ट तुम्हारे पास नॉलेज तो होना चाहिए, ताकि तुम किसी के साथ डिस्कस कर पाओ, और नेटवर्क्स बिल्ड करने चाहिए, और अपने सीनियर्स है जो भी है, उनके साथ मतलब बात करते रहना चाहिए। मतलब कुछ-कुछ नया मतलब उनको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जैसे हमारा प्लेसमेंट सीज़न 1 साल बाद स्टार्ट हो रहा है, वो उस टाइम उस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, तो वो काफ़ी सही चीज़ें तुम्हें बता देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती है। और बाकी यही है कि तुम्हें मतलब नई-नई चीज़ें ट्राई करो और टेक के साथ अपडेट रहो, और प्रोजेक्ट्स में मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते रहो, जिससे कि तुम्हें स्टैंड आउट करे ड्यूरिंग इंटरव्यू। Thank you, Shubham. Thank you, Bahadur, for sharing your wonderful, wonderful experiences. I hope it would help the viewers. And thank you so much for joining. एंड मस्ती करो यार, 4 साल में मस्ती करो।